हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक सीरीज़ चल रही है रैशनल नंबर की। आज का टॉपिक है आइडेंटिटीज़ एंड इन्वर्सेस ऑफ रैशनल नंबर। इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे। टुडे वी विल कवर एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर, एडिटिव इन्वर्स ऑफ रैशनल नंबर and multiplicative inverse of rational number. These 4 topics we will cover in this video. First topic is additive identity of rational number. इस आइडेंटिटी को हम लोग ये भी कहते हैं द रोल ऑफ ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। सो इसमें हम रोल ऑफ ज़ीरो डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे? ये प्रॉपर्टी आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एट द टाइम ऑफ होल नंबर्स एंड एट द टाइम ऑफ इंटीजर्स। पहले उसे रिकॉल कर लेते हैं थोड़ा सा by taking the different example. Suppose we take a whole number 2. So 2 plus 0, what we will get? We will get 2. 0 में कुछ भी number add करेंगे, what we will get? The sum will also be the same. It will be 2. Now 0 plus 2, what we will get? We will get again 2. This is for the whole number. Suppose we take any integer like -3 plus 0, what we will get? We will get -3. And if we take 0 plus -3, what we will get? We will get -3 again. This is for integers. Now for the rational number, we take any rational number like 2/3 and we add 0 in it. इसके अंदर अगर हम 0 ऐड करेंगे तो what we will get? We will get 2/3. Similarly, if we add 0 in 2/3, then we will get 2/3 again. The sum is the 2/3. तो 0 ऐड करने पर there will be the no difference in the rational number, in the integer, in the whole number. कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. सो दैट वी कैन से 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर. सो व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट in general we can write if a is an rational number, then a plus 0 is equals to 0 plus a is equals to a. In general we can write this for rational number, and 0 is called the additive identity of rational number. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि 0 में अगर हम कोई भी नंबर रैशनल नंबर ऐड करेंगे तो देन द सम विल बी ऑल्सो द रैशनल नंबर. सेम रैशनल नंबर वी विल गेट. देयर विल बी नो चेंज इन द रैशनल नंबर विच वी हैव टेकन. सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज multiplicative identity of rational number. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1 is the multiplicative identity, so that we can say the role of 1.
We will check what is the role of 1. It is the multiplicative identity of rational number. So we can take, firstly we will check for the whole number. 6 into 1 will be 6. 1 into 6 will be 6. This is for whole number. अगर हम 6 को 1 से या कोई भी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन व्हाट वी विल गेट द सेम नंबर. देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर. प्रोडक्ट विल बी सेम. अगेन फॉर द इंटीजर, सपोज -4, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, व्हाट वी विल गेट -4. 1 into -4 is -4. That is for integers. Now we are going to check for the rational number. For rational number we can take any one rational number like 2 by 7. 2 by 7 multiply by 1, what we will get? We will get 2 by 7. And if we multiply 1 to 2 by 7, then what we will get? We will get 2 by 7. So we can say that the 1 is the multiplicative identity for any rational number. क्या कह सकते हैं हम? When we multiply any rational number by 1, we get back the rational number as the product. जो रैशनल नंबर हम यहाँ पे लेंगे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ये क्या है? दिस इज द प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट विल बी द सेम रैशनल नंबर. देयर विल बी नो चेंज. सो वी कैन से in general for any rational number A, the multiplicative identity will be 1. A into 1 is equals to A is equals to 1 into A. ये in general we can write, and 1 is the multiplicative identity of rational number. 1 is the multiplicative identity of रैशनल नंबर. क्लियर है ये? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर. और वी कैन से नेगेटिव of a number. To solve this, to show this property, what we will do, we will take any whole number like 2 plus -2 and we will add in the inverse of that number. 2 लिया हमने. Suppose we are taking the example of whole number. 2 लिया हमने. 2 का इन्वर्स क्या होगा? साइन शुड बी रिवर्स्ड. +2 का -2 और इसको हम 2 में ऐड कर रहे हैं. आफ्टर एडिंग व्हाट वी विल गेट 0. एंड इफ वी ऐड -2 into, अगेन वी विल गेट
0. Now we can check for the rational number. Suppose we take 4/7. इसका इन्वर्स क्या होगा? इसका इन्वर्स होगा -4/7. अगर 4 में हम -4/7 ऐड करते हैं देन व्हाट वी विल गेट? वी विल टेक द एलसीएम 7, 4 + -4, that will be the 0/7 and result is 0. अगेन अगर हम -4/7 में 4/7 ऐड करते हैं देन what we will get? We will take the LCM 7 and -4 + 4, that will also be become 0. So in general what we can write? In general we can write for any rational number a/b plus -a/b is equals to -a/b plus a/b, the result will be 0. यहाँ तक क्लियर है? ये रिजल्ट 0 होगा. So what we can say? We can say that -a/b is the additive. ऐड कर रहे हैं ना हम उसमें, इसलिए we can write additive inverse of a/b. a/b में हमने क्या किया था कि -a/b को ऐड किया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि -a/b ये क्या है? इन्वर्स. इस साइन के लिए हमने लिखा एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि हम इसमें ऐड कर रहे हैं इसको. इस रैशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -a/b is equals to 0. And in the different way what we can write? We can write a/b is the additive inverse of -a/b. मतलब a/b का एडिटिव इन्वर्स है -a/b एंड -a/b का एडिटिव इन्वर्स है a/b. So we can write -a/b plus a/b is equal to 0. ये प्रॉपर्टी क्लियर है एडिटिव इन्वर्स की. सपोज वी टेक द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2/3, तो क्या होगा उसका एडिटिव इन्वर्स? वी विल राइट एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2/3 विल बी +2/3. जस्ट इसका साइन हम रिवर्स कर देंगे एंड वी विल गेट द आंसर. इसका जो सम होगा वो क्या होगा? 0 होगा. व्हेन वी विल ऐड 2/3 in -2/3, what we will get? We will get 0. So that we can say additive inverse of -2/3 will be 2/3. ये क्लियर हो गया होगा आपको एडिटिव इन्वर्स. आवर लास्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स. मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रैशनल नंबर. व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रैशनल नंबर? इसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर.
क्योंकि हम इसमें रेसिप्रोकल कर रहे हैं, जस्ट रिवर्स कर रहे हैं। लाइक इफ़ वी हैव 3/14, तो हम इसका क्या कर देंगे, इसका रिवर्स लेंगे 14/3 और इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 1। ये 1 हमें मिलेगा। सो वी कैन से दैट द 14/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/14। So 3/14 is the reciprocal of 14/3. In general, what we can write? In general, we can say a rational number C/D is the reciprocal or multiplicative inverse और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A/B। If A/B into C/D is equals to 1, क्या कह सकते हैं हम कि C/D क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये A/B का रेसिप्रोकल है अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1 आ रहा है तो। नाउ वी कैन सी द एग्जाम्पल। सपोज द क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव inverse of 3/7. Then what will be the answer? The solution will be we will reverse this, like 3/7 का क्या कर देंगे हम, 7/3। 7/3 को हम क्या लिख सकते हैं, that will be, इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 3 को 7 से तो क्या आएगा, 3 2 6, 1 remainder. So 7/3 will become 2 1/3. The 2 1/3 is the multiplicative inverse of 3/7. इसको चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि if we multiply 3/7 to 7/3, what we will get? We will get answer 1. Answer 1 मिल रहा है। So this property is clear कि if we get A/B को अगर हम C/D से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1। तो C/D क्या होगा, A/B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। सिमिलरली इसमें भी हमने यही कहा कि 7/3 is the multiplicative inverse of 3/7 and 7/3 is an improper fraction, so we can write into the mixed fraction. हम इसमें इसको mixed fraction में convert करके लिखेंगे, so that will be the answer 2 1/3 is the multiplicative inverse of 3/7. I hope students आपको आइडेंटिटीज एंड इनवर्स क्लियर ऑफ रैशनल नंबर क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।